Today we are going to learn about the next topic of the science, that is physics. We are learning about the refraction through lens, and A part, B part we have already completed, and C part is all the maximum, the important part of the C is a lens formula. We have learnt about the sign conventions of convex lens and concave lens, of the refraction through lens also. Today I am going to make you proof of the lens formula 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. Why this formula only? Why not any other formula which is used for this lens formula as a lens formula? Why the any other formula is not used? Let me make you understand, let me clarify its proof, and also we are going to learn about linear magnification, some numericals also I'm going to solve for it today. So this is our science learning part of today's day. Along with that, mathematics AP chapter, we have completed our C exercise, and A, B, C, D, E also we have completed, and F exercise, some more songs I am sending to you. Yesterday you have all written well, except four to five children, they have not written the test. Deepak, Prasad, Pratyush, Malik, 1, 2, 3. Then Kiran Reddy. These 4 children. Yeah, these 4 children have not given the test yesterday. And those who have not given the test, they will be asked. Mohesh also. These 5 children have not given, boys particularly. So they will be asked for the reason why they did not write the test too. Fine. So fine children, let us learn more about the concept of this lens formula with the numericals. Today I am also requesting to you, please update this exercise, lens formula exercise, that is C exercise in your notebook. Theory part, please update, followed by the numericals. You can send me your doubts. Be responsible, keep on solving all the doubts and all the numbers, and send your doubts to me. Whatever the doubts we are having, please send it in the group and be an active person in the group. And mathematics too, you can ask any doubts of you. Let me teach you our concept of today's. Lens formula 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. बच्चों जो यहाँ पे V है, V is called what? Try to understand each and every word what I am speaking slowly to you. V means the length of the image. Length of the image is determined from the optical center. देखिए यहाँ पे मैं एक लेंस किया हूँ, कॉन्वेक्स लेंस. आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फॉर्मूला है, कॉन्केव लेंस के लिए भी वही फॉर्मूला है, 1 by V minus 1 by U equal 1 by F ओनली. बिकॉज उसका साइन कन्वेंशन में मैं आपको दिखाया था, वहाँ पे फोकल लेंथ, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव है क्योंकि उसका F2 लेफ्ट साइड में है. बट जैसे कॉन्वेक्स लेंस का F2 राइट साइड में है, ये है हमारा पॉजिटिव राइट साइड. बाकी उसका इमेज भी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट भी इन द साइड ऑफ नेगेटिव, एंड फोकल लेंथ भी नेगेटिव है. कॉन्केव लेंस में V, U एंड F सभी नेगेटिव होता है, याद रखिए बच्चों. कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट देखिए लेफ्ट साइड में है. ऑब्जेक्ट मीन्स AB इज द ऑब्जेक्ट. पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम O इज कॉल्ड U. याद रखिए, U मीन्स ऑब्जेक्ट लेंथ. ऑब्जेक्ट लेंथ मीन्स ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट कितना दूर में है, उसे बोलते हैं U. F means from optical center to second focus point called F, focal length. राइट साइड में है पॉजिटिव. V means image length. इमेज लेंथ मतलब ऑप्टिकल सेंटर से इमेज कितना दूरी पे है, उसे बोलते हैं इमेज लेंथ V. I means इमेज हाइट. इमेज का हाइट देखिए नेगेटिव, ये नीचे की तरफ जा रहा है, वाई प्राइम की तरफ जा रहा है ना, नहीं वाई प्राइम की तरफ, तो इसलिए वो नेगेटिव है. ऑब्जेक्ट का हाइट O मीन्स ऑब्जेक्ट हाइट, इट इज पॉजिटिव, ऊपर की तरफ प्लस वाई की तरफ है, इसलिए प्लस है ये हाइट. देखिए बच्चों कैसे प्रूव करेंगे हम लोग. पहले तो आप लोग ये ट्राइंगल लेके जाइए, AOB ट्राइंगल. इन AOB ट्राइंगल एंड ट्राइंगल A प्राइम OB प्राइम, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं. देखिए कैसे कॉन्ग्रुएंस, हम लोग पहले सिमिलैरिटी करेंगे. देखिए एंगल AOB इज इक्वल A प्राइम OB प्राइम, दिस एंगल, दिस इज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल VOA. सिमिलैरिटी हम लोग में
क्लास 9th में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी के बारे में पढ़े थे, आपको याद होगा। देन ए बी ओ, ये लाइन जो है ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, इमेज भी परपेंडिकुलर है, ए प्राइम बी प्राइम ओ 90 डिग्री। तो क्या हुआ, ये दोनों सिमिलर हो गया। देन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इफ टू आर सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर। ए बी बाई ए प्राइम बी प्राइम इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ बी प्राइम। ये इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। इसे हम नहीं देखेंगे, राइट साइड में जो लिखा गया उसे अभी मत देखिए। सिमिलरली डी ओ एफ टू, देखिए डी ओ एफ टू ये ट्राइंगल एंड ए प्राइम बी प्राइम एंड एफ टू, दिस टू आर ऑल्सो सिमिलर। कैसे, ये भी ये रहा एंगल 90 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये भी रहा 90, ये रहा 90। अभी क्या मिला हमें बच्चों, डी ओ बाई ए प्राइम बी प्राइम इज इक्वल टू ओ एफ टू बाई बी प्राइम एफ टू, ओ एफ टू बाई बी प्राइम एफ टू। बट आप थोड़ा देखिए, ओ डी जितना है ए बी भी वही है, तो ओ डी जगह में आप लोग क्या कीजिए, ए बी को डाल दीजिए। ए बी बाई ए प्राइम बी प्राइम इज इक्वल टू ओ एफ टू बाई एफ टू बी वन बी प्राइम, इक्वेशन 2। इसे इक्वेशन 2 ले जाते हैं। इसे इक्वेशन 2 ले जाते हैं। अभी कंपेयर कीजिए, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में ए बी बाई ए प्राइम बी प्राइम इज इक्वल ओ बी बाई ओ बी प्राइम है। इक्वेशन 2 में ए बी बाई ए प्राइम बी प्राइम इक्वल ओ एफ टू बाई एफ टू बी प्राइम है। तो ए बी एंड ए प्राइम बी प्राइम है दोनों तरफ लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड भी इक्वल होगा। ओ बी बाई ओ बी प्राइम इज इक्वल टू ओ एफ टू बाई एफ टू बी प्राइम। अभी चलो वैल्यू डाल देते हैं। ओ बी क्या है बच्चों, ओ से बी ये रहा ऑब्जेक्ट का लेंथ, लेफ्ट साइड में है तो माइनस यू, माइनस यू। ओ बी प्राइम देखिए बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से बी प्राइम इमेज का लेंथ वी, राइट साइड में तो प्लस वी इज इक्वल टू ओ एफ टू। देखिए ओ एफ टू मतलब क्या है बच्चों, फोकल लेंथ एफ, एफ डाल दिया। एफ टू बी प्राइम मतलब क्या है बच्चों, एफ टू बी प्राइम, यहाँ से यहाँ तक एफ टू बी प्राइम इज इक्वल टू ओ बी प्राइम माइनस ओ एफ टू, ओ बी प्राइम टोटल ओ बी प्राइम माइनस ओ एफ टू। ओ बी प्राइम इज वी, एफ टू इज एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, माइनस यू ऑफ वी माइनस एफ एंड एफ इंटू वी, वी इंटू एफ। नाउ राइट से देखिए बच्चों, मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू वी माइनस यू वी, माइनस इंटू माइनस प्लस यू एफ, देन एफ बी एफ। डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड को यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए। क्या मिलेगा, माइनस यू वी बाई यू वी एफ प्लस यू एफ बाई यू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ बाई यू वी एफ। वी एफ कैंसिल हो गया, 1 बाई यू बचा राइट साइड में, यू एफ कैंसिल होगा, 1 बाई वी बचा लेफ्ट साइड में, माइनस 1 बाई एफ बचा लेफ्ट साइड में। माइनस 1 बाई एफ को राइट साइड लेके चले जाइए, 1 बाई यू को लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। दिस इज द प्रूफ, कॉल इट एज अ लेंस फॉर्मूला। ये प्रूफ को हम लोग लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। इतना प्रूफ हमें करना पड़ेगा। यदि आपको एग्जामिनेशन में आ गया प्रूफ दैट 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, ये कभी भी नहीं आता, बट बेसिंग ऑन दिस सम न्यूमेरिकल्स आर कमिंग। Then comes children about linear magnification. What is linear magnification? लिखा भी गया है वहाँ पे. It is the ratio between image length of the image by length of the object, that is v by u. मतलब length of the image is actually v, length of the object is u. v by u equal to I by o. I means image height by object height. तो ये कैसा है प्रूफ, देखिए मैं बताता था आप लोगों को। देखिए हम लोगों को जब प्रूफ मिला ए बी बाई ए प्राइम बी प्राइम इज इक्वल, यहाँ तक प्रूफ करोगे दोबारा आप लोग, यहाँ तक यदि ये वाला पूछा गया ए बी बाई ए प्राइम बी प्राइम बाई ओ बी बाई ओ प्राइम ओ बी प्राइम। ए बी क्या है बच्चों, देखिए ऑब्जेक्ट का हाइट है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट का हाइट। ओ ए प्राइम बी प्राइम इज मच, इमेज का हाइट आई। ओ बी लेफ्ट साइड में है, देखिए माइनस आई है, आई ए प्राइम बी प्राइम नीचे की तरफ है तो माइनस आई। देखिए ओ बी इज कॉल्ड इमेज लेंथ, ओ बी ऑब्जेक्ट लेंथ, ओ बी प्राइम इमेज लेंथ। ओ बी इज ऑब्जेक्ट इज यू, लेफ्ट साइड में है माइनस यू, राइट साइड में जो है वो सब हम बोलते हैं क्या, वी इमेज, इमेज का लेंथ वी। ओ बाई आई इक्वल यू बाई वी, उल्टा कर देंगे, ये माइनस में था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आई बाई ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। तो इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज लेंथ बाई ऑब्जेक्ट लेंथ।
उसके बाद आता है पावर ऑफ द लेंस गाइस। इफ विल गो टू द ऑप्टिशियन, यदि आप एक ऑप्टिशियन के पास जाओगे तो आपका आंख यदि ख़राब है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोग जा रहे हो लेंस लेकर आने के लिए और टेस्ट करने के लिए आंखों का टेस्ट, तो क्या होगा देखिए। यदि हम लोग जो पावर के बारे में बात करें तो जब हम लोग लेंस खरीदने के लिए जाते हैं हमारा वो पावर डायोप्टर में लिखा जाता है पावर, एंड इट्स एसआई यूनिट बोलते हैं डायोप्टर और 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर। याद रखो 1 डायोप्टर इक्वल 1 मीटर विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो ये लिखा भी गया D इज इक्वल टू 1 m 100 सेंटीमीटर। देखिए पावर इक्वल 1 बाई फोकल लेंथ 1 बाई फोकल लेंथ। यदि हम लोग जा रहे हैं मतलब किसी ऑप्टिशियन के पास जाके उनको यदि हमारा आंखों का टेस्ट करने के लिए बोलेंगे एंड लेंस देने के लिए बोला जाएगा तो लेंस का पावर डायोप्टर में लिखा जाता है, वहाँ पे फोकल लेंथ में वो बताता नहीं है हमें। तो हमें मालूम करना पड़ेगा कि हमारा लेंस का फोकल लेंथ कितना है। तो कैसे मालूम करोगे आप लोग बच्चों, यदि लिखा गया कि आपका फोकल लेंथ देखिए पावर यदि आपका 5 डायोप्टर है पॉजिटिव 5D, तो इसका मतलब आपका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर का होगा। कैसे करेंगे आप, देखिए पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ 1 बाई 20 मीन्स 20 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 बाई 100 मीटर, सो 20 बाई 100 ऊपर गया, 100 बाई 20 इक्वल टू +5। यदि वहाँ पे यदि आपको बोला जाता कि आपका पावर -5 है मतलब -20 सेंटीमीटर होता। पावर कैसे माइनस आएगा, यदि कॉन्केव लेंस है तो पावर होगा माइनस में, यदि कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर होगा प्लस में। यदि आप लोग लेके जा रहे हो बहुत सारे लेंसेस है, 3-4 लेंसेस अलग अलग पावर का है, ये 1D 2D 3D, तो टोटल मिला दो कि सभी लेंसेस को कितना पावर आएगा इक्वल सम ऑफ ऑल द पावर्स। यदि आप लोग 2 लेंस लेके जा रहे हो, एक है कॉन्वेक्स दूसरा है कॉन्केव ऑफ 5 डायोप्टर अनदर इज -5 डायोप्टर, and if you keep together and if you watch an object through it then it will be visible like a normal object only, because +5D and -5D becomes 0 diopter। जब मिल जाएगा कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 5 डायोप्टर एंड कॉन्केव लेंस ऑफ द सेम -5 डायोप्टर ऑफ फोकल लेंथ और पावर ऑफ द लेंस, if both are added up then they will behave like a normal glass। that means you are watching an object through the normal glass, it will behave like, because total power is goes 0 diopter here। तो याद रखिए बच्चों ऐसे सॉल्व करना है। मैं आपको दिखाता हूँ 1 का A सॉम नंबर 1 क्वेश्चन। देखिए बच्चों नंबर 1A, एट व्हाट पोजिशन ए कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, कैंडल का लेंथ मतलब कैंडल इज एन ऑब्जेक्ट हुज हाइट इज 3 सेंटीमीटर, बी प्लेस्ड एट व्हाट पोजिशन इट विल बी प्लेस्ड। व्हाट पोजिशन मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है कैंडल ये कितना दूरी पे है, मतलब यू निकालना है हम लोगों को। अब बच्चों वो दे दिया गया ऑब्जेक्ट हाइट। व्हाट पोजिशन ए कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड in front of a convex lens so that its image of length 6 centimeter is obtained on the screen। what is obtained, image का height कितना है बच्चों 6 centimeter is the image height, length of 6 centimeter is obtained on the screen, placed distance 30 centimeter behind the lens। ये जो इमेज है v इज इक्वल 30 सेंटीमीटर, मतलब इमेज का लेंथ है v इक्वल 30 सेंटीमीटर, इमेज का हाइट है 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ऑफ कैंडल इज 3 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट हाइट, एंड u निकालना है हम लोगों को बच्चों। u एट व्हाट पोजिशन द कैंडल इज प्लेस्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर पूछा गया है। व्हाट इज द फोकल लेंथ इन द लेंस पार्ट ए का ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ भी निकालेंगे। दिखाते हैं इसका आंसर कैसा आएगा। देखिए O इक्वल 3 सेंटीमीटर, I इक्वल -6 है, नीचे की तरफ है इन्वर्टेड इमेज 30 सेंटीमीटर v, u निकालना है। v बाई इक्वल I बाई ओ वी नो, आप लोग लिखोगे वी नो v बाई u 30 बाई u इज इक्वल -6 बाई 3 इंटू 30 90 बाई -6 -15। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर फ्रॉम द लेंस। अभी फोकल लेंथ निकले 1 बाई v माइनस 1 बाई यू, v है 30 1 बाई 30 माइनस 1 बाई माइनस यू का वैल्यू -15 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बाई 15 1 बाई एफ आया इज इक्वल 1 बाई एफ। 13 15 का एलसीएम में 30 डिवाइड 31 1 1 जो 1 30 डिवाइड बाई 15 2 2 1 जो 2 1 प्लस 2 3 बाई 30
equal 1/10. So focal length is how much? 10 centimeter is the length of the focus, called focal length of this lens. Like this, please do the other numericals and ask me your doubts. Have a good day. Stay safe, children.